Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrasti, and I hope you all are doing well. And in today's video we will be discussing about CUET UG 2025. So इसके registrations तो ख़त्म हो चुके हैं and I hope you all have registered for it. So basically graduation करने के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए CUET UG देनी पड़ती है, ठीक है, ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है और उसमें जब आपकी रैंक या आपके मार्क्स अच्छे आते हैं उस बेसिस पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे ग्रेजुएशन के लिए। और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। यू हैव टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर और वहाँ पर आपको कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम देनी है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि ये OMR पे होता है, बट नो, इट इज़ टोटली ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसमें एक होता है सब्जेक्ट पेपर जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है, बाकी होता है डोमेन पेपर जिसमें आप कोई से भी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड थर्ड इज द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर राइट आंसर के लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल। सो -1 मार्क है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो हर गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क कट जाएगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अवेलेबल है। सो सिलेबस कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैंसुरेशन, statistics, logical and analytical reasoning, general science and environmental literacy. So in this video we would be discussing about some of the previous year questions of CUET UG general aptitude test of 2024. So इस पेपर में बेसिकली 20 से 25 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड थे और बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग है। So first question, which organization developed and launched Ugram indigenous assault rifle for the armed forces? And the answer is DRDO. So on 8th January this was developed and in 2024 itself. Question number 2, which of the following substances is a bad conductor of electricity? And we should know that diamond is a bad conductor of electricity. Graphite being a non-metal, it is a good conductor of electricity. Okay. Now question 3, Jolaghat suspension bridge between India and which country has become fully operational now? So this bridge is between Nepal and India, okay, or it has been fully operational now. Now the next question, due to ocean acidification, when the ocean becomes more acidic, what happens to the pH level of the ocean? So answer is the pH level goes down. So हमको पता होना चाहिए कि एसिड की जो pH level होती है वो 0 to 7 होती है। 7 is the pH level of neutral substances and 7 to 14 is the pH level of basic substances. Okay. Now who is the first para athlete to receive the Padma Bhushan award in India? And the answer is Devendra Jhajaria. He is a javelin thrower player, ठीक है। And Padma Bhushan is the third highest civilian award in India. Zemu Glacier is located in which state of India? And the answer is Sikkim. Okay, so basically कुछ जो important glaciers हैं उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। Who among the following is Chile's first woman president? And the answer is Michelle Bachelet. ओके, सो ये फर्स्ट जो होते हैं ना किसी कंट्री के या अपनी ही इंडिया के जो फर्स्ट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स? एंड द आंसर इज क्वाशियोकर। सो अर्थराइटिस जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू deficiency of vitamin A. Which Indian has won the Raman Magsaysay Award 2023? Answer is Dr. Ravi Kannan R. Okay, he received this, and Raman Magsaysay Award is also known as Asia's Nobel Prize. Okay, now who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission of India? Answer is Dr. Arvind Panagaria. And you also should know that Finance Commission is constituted by the President of India under Article 280. DRDO has conducted the first successful flight test of Agni 5 missile equipped with MIRV technology, and उसका full form पूछा गया, ठीक है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु इज द राइट आंसर, ठीक है। सो कुछ फेमस टेम्पल्स के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? सो कुछ बड़े बड़े आर्टिकल्स, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 324 इज द करेक्ट आंसर। 280 तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है। इन विच स्टेट इज आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? एंड इट इज लोकेटेड इन आसाम।
बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ का है, एमपी मध्य प्रदेश का। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल का है। बंदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका का। पेरियार नेशनल पार्क है केरला का। गिर नेशनल पार्क एंड वेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात के। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, सो ये फर्स्ट आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर। सो जम्मू और श्रीनगर को कौन कनेक्ट करता है? बनिहाल पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यू शुड नो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। सो क्वाड एक बेसिकली कुछ कंट्रीज का एक डायलॉग जैसा क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप है। सो उसका मेंबर चाइना नहीं है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे। सो ये फर्स्ट जो होते हैं ना वो पता होनी चाहिए, जया वर्मा। So out of given option, which scheme's objective is to conduct an annual survey at the Gram Panchayat level to monitor the progress in the development process of rural India, and answer is Mission Antyodaya. कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपको पता होनी चाहिए, पूछे जा सकते हैं। सो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं पिछले साल, एंड दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंसीज। सो को पता होना चाहिए कि म्यांमार की करेंसी है क्यात, रशिया की करेंसी है रशियन रूबल, भूटान की करेंसी है एंगल्ट्रम, एंड मलेशिया की है रिंगनेट। ठीक है, एंड ये है कुछ पर्सन्स, कुछ फेमस पर्सनालिटीज, उनके एरियाज ऑफ वर्क क्या है। सो वो मैच द कॉलम। ये थोड़ा सिंपल होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि चरक इज रिलेटेड विद विच एंड ऑल। ठीक है, एक और मैच द कॉलम का एक ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है 1। यू शुड रीड दिस। ओके, सो आप PYQs देखिए। PYQs गिव यू द बेसिकली अ वे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन एग्जाम। ठीक है, सो इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, किस एरिया में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वांट और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। सो आई होप कि आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, रीड द सिलेबस, है ना, सी द PYQs, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जब देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि बेसिकली एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।